मेरा 36 ड्रग्स पेडलर का केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो उसमें से हम लोग का एक इंडियन आर्मी भी इसमें शामिल है और 4 IRBN, 2 सिविल पुलिस और जो पेडलिंग में इन्वॉल्व था उन लोग को हम जेल भेज दिया। रोहित बसुमतारी वो लोग को किंग पिन नाम दे के बहुत ये है, थोड़ा बहुत इसमें गलत है क्योंकि वो लोग किंग पिन नहीं है, वो लोग ड्रग्स लॉर्ड नहीं है जो म्यांमार से लाके यहाँ ईटानगर में पेडलिंग कर रहा है या गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में पूरा वो लोग सप्लाई कर रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द स्पेशली यूथ्स। अभी हम लोग यहाँ में प्रेस क्लब में आने का एक बहुत ज़रूरी हो गया। प्रेस क्लब में जो बात करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस देना चाहूँगा। मैं किपा का नाम, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एंड हमारा राइट में श्री गुमिन मिजे, द प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स वॉरियर। इनका साथ में जो लीगल एडवाइज़र हमारा राइट में ताकर गोई, द लीगल एडवाइज़र ऑफ ऑल अरुणाचल एंटी ड्रग्स वॉरियर, एंड हमारा साथ में द प्रोगेन ओसी, द एडवाइज़र ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एंड साथ में द ताकर तारो दादा, द असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ में हम लोग आज बहुत ज़रूरी हो गया कि आने का मकसद है द ड्रग्स पेडलर इशू इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसको डिटेल हमारा एडवाइज़र सर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन से ब्रीफिंग करेगा, एंड बिसाइड दैट हमारा गुमिन मिजे सर भी अपना एक ग्रीवेंसेस प्लेस करेगा। तो उस दोनों को सौंपा करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहेगा कि सेक्रेटरीट कम्प्लेक्स में जो कल परसों जो इंसिडेंट केस जो है, 2 आदमी को अरेस्ट हुआ है। वन इज विकी चेत्री, वो MTS ऑफ द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एंड अनदर इज ओछे गेट में जो अरेस्ट हुआ है कि पंकज लावकर 53 इयर्स, वो डाक राना ऑफ द पावर डिपार्टमेंट। ये दोनों जो इतना हिम्मत है कि इस हमारा सेक्रेटरीट का कम्प्लेक्स में आके ड्रग्स को किसी को सेलिंग करना, और एक लगता है ये जो बाथरूम में अरेस्ट हुआ है बोला सुनने में आया कि दोनों अरेस्ट हुआ। हमको लगता है कि ये दिस इज़ द इंसल्टिंग टू द स्पेशली द होम मिनिस्टर and chief minister, deputy chief minister, and secretariat premise is the highest the institution in the state of Arunachal Pradesh, जिसमें इतना हिम्मत से आके ड्रग्स को प्रेवलिंग करा है। It seems it is not insulting to the 12 minister and 60 MLA. It is insulting to entire Arunachal Pradesh citizens. So on that line, I request my advisor of all Arunachal Pradesh youth organization to briefing it. Thank you. Thank you, Mr. President. In fact, my name is Porgen Osi. I am the advisor to all Arunachal Pradesh youth organization, and today I feel a great privilege. In fact, we are with a joint press briefing with Arunachal anti-drug warrior headed by Mr. Gumin Mize. In this joint conference, a joint statement, we would like to inform and state before the citizen of public of this state as well as the government of this state that it is a serious blow in the part of the government that earlier, in fact, we all knows that within the civil secretariat building, few persons has been arrested
of holding some drug substances, which is very much illegal. It seems those people who are making in some business are also percolate to the secretariat building. It is a serious blow to the people of this state. In our joint statement, we seriously thinking and appeal to the state government in the nose of your office, everything has been happened. So in our joint statement also, we would like to invite the concerned public, the citizen, for their active participation to curb this drug maniac in the society. So today it has been learned that drugs activities are a serious concern, that our every citizen and our state government should take serious note of this. This is, I think, we are not late. Still, we can streamline our own department. If the state government is failed to streamline their narcotic department, these drug activities, drug peddling and drug business activities cannot be controlled. So in earlier, we also wrote several applications and the representations asking the state government for streamlining of the drug narcotic department. But till today, we do not have any information about that. So it is our earnest appeal to the government, state government, based strictly to the Honorable Chief Minister of the state as well as the Home Minister. This is a serious concern which threatens the society. If it is not being tackled in time, there may be a big problem within our society, and our existence of the younger generation will be somewhere stake, and it will pave the way to live like a destitute. So it is an earnest appeal from our side in our joint press statement. We repeatedly appealing the state government to streamline the narcotic department so that we can at least streamline and tackle this drug maniac in this state. Thank you very much. नमस्कार सभी को। मैं अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स वॉरियर का प्रेसिडेंट गुमिन मिजे फिर से आप लोग का सामने में आज ड्रग्स का बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ। आज तक मेरा ये टेस्टिमोनी के तौर पे बता दूँ, मेरा 36 ड्रग्स पेडलर का केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो उसमें से हम लोग का एक इंडियन आर्मी भी इसमें शामिल है और 4 IRBN, 2 सिविल पुलिस, और जो पेडलिंग में इन्वॉल्व था उन लोग को हम जेल भेज दिया। और उसके बाद यूज़र्स जितने भी या ब्रोकर्स हम पकड़ा है वो पुलिस होने से किया है, वो लोग भी तो इंसान ही है, इसलिए उन लोग को रिहेबिलिटेशन सेंटर कोर्स के लिए भेज दिया। ईटानगर में ये महीना में लगातार ये ड्रग्स का कुछ ऐसे ड्रग्स पेडलर पकड़ने का ऐसे सोशल मीडिया में हम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो उस दिन का 23 मार्च का वो होलोंगी रोड का वो हादसा का बारे में थोड़ा मेरा तरफ से उसमें वो एग्जैक्टली रोहित बसुमतारी वो लोग को किंग पिन नाम दे के बहुत ये है, थोड़ा बहुत इसमें गलत है,
क्योंकि वो लोग किंग पिन नहीं है, वो लोग ड्रग्स लॉर्ड नहीं है। ड्रग्स लॉर्ड बोले तो जो करोड़ों में खेल रहा है, जो म्यांमार से लाके यहाँ ईटानगर में पेडलिंग कर रहा है या गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में पूरा वो लोग सप्लाई कर रहा है। अगर ड्रग्स लॉर्ड ज़रूरत पड़ने पर बता सकता है, आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं हम लोग से। और हम लोग का मोटिव कोई ये इंटेंशन नहीं है कि कोई किसी का इमेज, कोई किसी का फ्यूचर को बर्बाद करे। जितना हो सके हम लोग का ये इंटेंशन है कि हर कोई सुधर जाओ, ड्रग्स पेडलर हो या यूजर्स हो। मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा हम 4 साल 5 साल होने वाला है, तो उसमें हम देखा गया है शायद ये चीज़ चाइना का पॉलिसी है, हम लोग का नेबरिंग कंट्री का। चाइना एक ऐसे मतलब हम लोग का नेबरिंग कंट्री में से वो जितना हो सके अपना नेबरिंग कंट्री को वो कमज़ोर बनाने का कोशिश में है। हम लोग को 2000 ये को कोरोना से अपना नेबरिंग कंट्री को अटैक करके देखा था, वो तो कामयाब नहीं हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन अभी धीरे ही सही ये ड्रग्स शायद सक्सेस होने जा रहा है। और हम लोग का यहाँ में तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। ये अभी जो चल रहा है हीरोइन, इसका ड्रग्स लॉर्ड, इसका ड्रग्स का किंग पिन वो लोग म्यांमार से लाते हैं और वो लोग अभी खुलेआम घूम रहे हैं ईटानगर में। आप लोग को ये अभी फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग ये बिजनेस मत कीजिए। ये बिजनेस का इफेक्ट, साइड इफेक्ट ये होता है कि हम लोग का यहाँ पे 5 या 10 साल का बाद में हम लोग का यहाँ आर्मी नहीं होगा और पुलिस नहीं होगा और स्पोर्टमैन नहीं होगा और पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। और उसका बाद ड्रग्स इफेक्ट ये है कि वो लोग बच्चा जन्म करने नहीं सकेगा और इसलिए हम लोग का ये फ्यूचर जनरेशन बर्बाद होने जा रहा है। यहाँ का ड्रग्स लेने वाला तो जो अभी 3000 लोग ही वो ड्रग्स अपना जोश में वो लोग का खून गर्म होके वो लोग एक बार गलती करने के बाद वो लोग ड्रग्स से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में दूसरा बिजनेस कीजिए। ये ड्रग्स पेडलिंग बहुत हम लोग का ये फ्यूचर में इफेक्ट होने वाला है और होते होते पेडलर जो पेडलिंग कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहा है, आपका लड़का बच्चा भी ये ड्रग्स में एडिक्ट हो सकता है बाद में। तो इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है ड्रग्स पेडलर लोग से। और यही है कि आज हम ईटानगर आ गया तो थोड़ा अभी हम एक मिशन यहाँ में प्लान करके देखा है। हो सके तो इसमें अगर कामयाब होगा तो आप लोग को हम दिखाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। और ये उतना कमज़ोर मत सोचिए, जिसका तकदीर खराब होगा वो तो नहीं बचेगा आज। बस थैंक यू। काफ़ी सारे आपने 36 नंबर्स ऑफ ड्रग्स सप्लाई मिला है जी। अभी यंग जनरेशन जो है कि ड्रग्स के और खींचा चला जा रहा है। आप 5-6 साल से लगातार इसमें काम कर रहे हैं, आपकी ओर से क्या मैसेज देना चाहते हैं तमाम अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट इंटर नॉर्थ ईस्ट यूथ के लिए? हाँ, उसके लिए जो अभी तक हम लोग का काम करने का वैल्यू पूछने से हम लोग बता नहीं सकते हैं। वैल्यू ये है कि जो अभी तक अनजान है, 3000 या तो वो जितने मतलब बचपन जिसका अभी बचपना चल रहा है, वो लोग अभी तक ड्रग्स क्या चीज़ है, खराब है ना चीज़ है, वो लोग को मालूम नहीं। वो लोग जितना मतलब ड्रग्स नहीं ले रहा है अभी तक, और ड्रग्स नहीं लेके वो लोग ये टीनेज को पार कर लेगा, वही हम लोग का काम करने का वैल्यू रहेगा। और उन लोग के लिए हम ये है कि अभी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अरुणाचल का कोना में हम अवेयरनेस प्रोग्राम
रखना चाहता है, अवेयरनेस प्रोग्राम हम कराना चाहता है। ड्रग्स की आसी से हर कोई मालूम होना है, उसमें माँ पिताजी का भी ड्यूटी बनता है ड्रग्स की आसी से, और ड्रग्स लेने से क्या होता है उसको मालूम होना सबके लिए ज़रूरी होता है। और वो अवेयरनेस कैम्प हम अपना ये में जितना हो सके सियांग बेल्ट में हम पहले कराएगा, तो उसका बाद दूसरा ये में डिस्ट्रिक्ट में जाने से भी जाएगा। तो मतलब ये है कि जिसमें बाइबल में भी कहा गया है, मैथ्यू चैप्टर 7:3 में, आप अपना आँख में इतना अपना भाई का आँख में इतना छोटा सा वो स्पेक दिखाई देता है, लेकिन अपना ही आँख में इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, तो ऐसा कुछ कहा गया है। तो उसी का मुताबिक अपना जगह को सफा नहीं करके दूसरा जगह जाना भी वो भी गलत हो सकता है। उसमें